Hello dear students, this is Bhagyashri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 3 of the subject Control System and PLC, whose subject code is 22531 and unit number 2 is Time Domain Stability Analysis. This is the most important topic, poles and zeros, to solve number of equations and examples. So listen carefully. So dear students, as you know, the course outcome. What is the meaning of course outcome? Course outcome is nothing but whatever the topics you are studying in this particular subject, that is control system, after completion of this subject you should be able to do something, and these are nothing but the course outcomes. So after completion of unit number 2 you should be able to determine the stability of the control system. कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है कि हम जो भी सिस्टम को विथ कुछ कंट्रोलिंग एक्शन के साथ रन करते हैं, दैट इज़ कंट्रोल सिस्टम, और वो सिस्टम नेचर में स्टेबल होना ज़रूरी है. अगर अनस्टेबल सिस्टम रहेगी तो अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट्स हो सकते हैं. दिस इज़ द CO-PO मैपिंग. हियर it is very much required to map the CO with the PO. PO means program outcome, means after completion of your diploma you are expected to have 10 POs with you. ठीक है, उसमें से ये वाला जो CO है सेकेंड यूनिट का, वो कितने POs को सेटिस्फाई कर रहा है. सो दिस CO नंबर 2 इज सेटिस्फाइंग PO1, PO2, PO3, PO4, PO9 एंड PO10. So what are the learning outcomes? Learning outcomes are nothing but the topic which you have to be able to do after completion of this particular unit. After completion of this topic number 2.3, that is poles and zero, you should be able to understand the meaning of poles and zeros. You should solve the different examples based on poles and zeros, and you should be able to represent the poles and zeros in S-plane. Everything we are solving in control system, that should be in the S-plane. अब आप देखिए कि यहाँ पे जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज़ नथिंग बट GS इज इक्वल टू CS अपॉन RS. हमने यूनिट नंबर 1 में how to design the transfer function, how to write the transfer function, that is the equation of the gain. वो कैसे लिखना है वो हमने समझ लिया है. So it is nothing but the Laplace of output upon Laplace of input. तो output upon input is always the equation of the gain. तो यहाँ पे आप देखिए कि this CS यानी न्यूमरेटर, CS and this RS is the denominator. ये दोनों भी जो होते हैं वो हमेशा ही पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस होते हैं इन एस प्लेन. पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स. यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे B0, B1, B2, B3 अप टू BM-1 से लेके BM तक. वैसे ही आप न्यूमरेटर में देखिए AN, A1, A2, A3, इस टाइप से यहाँ पे भी बहुत सारे टर्म्स रहेगी. सो बोथ दीज इक्वेशंस आर पॉलिनोमियल्स. इनको जब हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपल फॉर्म में तो वी गेट द इक्वेशन लाइक दिस. This is the simplest form in S-plane. This K indicates the system gain. जैसे ही आप इसके इक्वेशन सॉल्व करोगे you will get the direct equation in the transfer function. तो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा. This is the mathematical representation. अभी आपको सिर्फ थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है. जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे. K is the system gain and N is nothing but the type of system. This N is the highest degree. S टू द पावर n. तो ये n की जो वैल्यू है ये हाईएस्ट डिग्री है. इस n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है. अगर इसकी वैल्यू 1 है तो वी कैन से दैट दिस इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन. अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन. तो इस टाइप से हम पोल्स एंड जीरोस के इक्वेशंस को जस्टिफाई कर सकते हैं. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोल? पोल का मतलब क्या होता है? सो
अभी आप लोगों ने एक एग्जांपल देखा सी एस अपॉन आर एस, तो जो डिनोमिनेटर है वो है हमारा आर एस, वो उसका इक्वेशन जो था वो इन टर्म्स ऑफ एस था। तो डिनोमिनेटर में अगर हमने कुछ एस की वैल्यू ऐसी रख दी तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या बन जाएगी फिर ज़ीरो, यानी वो वैल्यू एस की वो वैल्यू जो डिनोमिनेटर को ज़ीरो बनाती है, सो दैट कंप्लीट इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 यानी इन्फिनिटी। आप ध्यान दीजिए मैं जो बात बोल रही हूँ, एस की ऐसी वैल्यू जो डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना देती है, जिसकी वजह से टोटल ट्रांसफ़र फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है, उस वैल्यू को, उस एस की वैल्यू को पोल्स कहते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एस फॉर विच द ट्रांसफर फंक्शन मैग्नीट्यूड becomes infinite after substituting in the denominator of the system are called as poles of the transfer function। ये अभी आपका क्लियर होगा जब हम यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जहाँ पे डिटरमाइन द पोल्स ऑफ गिवन ट्रांसफर फंक्शन। ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ सी एस, दिस इज आर एस, और ये पूरा एस के फॉर्म में है और यहाँ पे भी पूरा एस के फॉर्म में। तो यहाँ पे पोल्स डिसाइड करना है। पोल्स का मतलब क्या है, ऐसी एस की वैल्यू जो डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना दे, और एक बार डिनोमिनेटर ज़ीरो बन गया तो दिस अपॉन ज़ीरो, यानी टोटल क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो पोल्स, इस डिनोमिनेटर को अगर मुझे ज़ीरो बनाना है तो डिनोमिनेटर को मुझे इक्वेट करना पड़ेगा ज़ीरो के साथ, इसीलिए द पोल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग डिनोमिनेटर विथ ज़ीरोस। तो पहला स्टेप क्या है पोल्स निकालने के लिए, डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना दो। सो एस इंटू एस प्लस थ्री प्लस इंटू एस प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमको पता है कि यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स देखते हैं तो एस की वैल्यू या तो ज़ीरो हो सकती है, एस प्लस थ्री की वैल्यू भी ज़ीरो हो सकती है, और तीसरा फैक्टर है एस प्लस फोर, ये भी ज़ीरो हो सकता है। ये आप लोगों ने 8, 9, 10th स्टैंडर्ड में ये सारे फैक्टराइजेशन के रूल्स पढ़े हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल कि यहाँ पे तीन फैक्टर दिख रहे हैं और तीनों फैक्टर को हमको किसके साथ इक्वेट करना है, ज़ीरो के साथ। तो पहला फैक्टर तो एज इट इज़ एस इज इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा फैक्टर है एस प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एस की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री, एस प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एस की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन में एस की वैल्यू मैं माइनस थ्री रखती हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो माइनस थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा ज़ीरो, और ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो, यानी डिनोमिनेटर पूरा ज़ीरो बन गया। एस की वैल्यू अगर हम माइनस फोर रखते हैं तो माइनस फोर प्लस फोर ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो इंटू एनीथिंग, टोटल इक्वेशन ज़ीरो, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर से ज़ीरो हो जाएगा। ऐसी एस की वैल्यू जो डिनोमिनेटर टोटली ज़ीरो कर दे, दीज आर द पोल्स। The poles are s is equal to 0, s is equal to minus 3, s is equal to minus 4. Now, अब इस पोल्स को, जो भी हमारे पोल्स आए हुए हैं उनको कैसे कैलकुलेट करना है, एस प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करना है। दिस इज अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, हाउ टू रिप्रेजेंट द पोल्स एंड जीरोज इन एस प्लेन। एस प्लेन को ड्रॉ करने का एक तरीका है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, x axis is a real axis, it is indicated by sigma, and this y axis is a imaginary axis, it is indicated by j omega। ठीक है, तो हमेशा सिग्मा इज फॉर द x axis, j omega is for the y axis, this is imaginary and this is real। तो अभी यहाँ पे आप देखिए ज़ीरो के राइट हैंड साइड वाली सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती है, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी वैल्यूज़ निगेटिव, यानी माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। वैसे ही ज़ीरो के ऊपर वाली सारी साइड पॉजिटिव है, ज़ीरो के नीचे सारा साइड निगेटिव है, लेकिन इट इज़ इमेजिनरी, इसलिए इमेजिनरी एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन जे से होता है। तो दिस इज़ प्लस जे प्लस टू जे प्लस थ्री जे, यहाँ पे माइनस जे माइनस टू जे माइनस थ्री जे। अब हमारे जो पोल्स आए हुए हैं पहले प्रीवियस एग्जाम्पल में, पोल्स की वैल्यू क्या क्या आई थी, एस इज इक्वल टू ज़ीरो, एस इज इक्वल टू माइनस थ्री और एस इज इक्वल टू माइनस फोर। इसलिए इस एक्सिस पे हम ज़ीरो को क्रॉस करके मार्क करेंगे, माइनस थ्री क्रॉस मार्क करेंगे और माइनस फोर के लिए क्रॉस। तो क्रॉस इंडिकेट्स द पोल्स। तो हमने एस प्लेन में रिप्रेजेंट कर दिया है पोल्स को। अब अगर हमें पोल्स समझ में आ गए तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब ज़ीरो देखिए आप,
ज़ीरो का मतलब न्यूमरेटर में s की वैल्यू ऐसे पुट करना जिससे टोटल न्यूमरेटर ज़ीरो बन जाए, टोटल न्यूमरेटर ज़ीरो बन जाए। और अगर एक बार न्यूमरेटर ज़ीरो बन गया तो पूरा ट्रांसफ़र फंक्शन भी क्या बन जाता है, ज़ीरो। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ s फॉर विच द ट्रांसफ़र फंक्शन मैग्नीट्यूड बिकम ज़ीरो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग इन द न्यूमरेटर ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड एज ज़ीरोज़ ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन। यानी ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने के लिए न्यूमरेटर को इक्वेट करना है ज़ीरो के साथ, और पोल्स कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर को इक्वेट करना है ज़ीरो के साथ। दिस इज़ इन सिंपल लैंग्वेज। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि डिटरमाइन द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन ट्रांसफ़र फंक्शन। तो यहाँ पे सेम ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है, s इंटू एस प्लस टू, एस प्लस फोर अपॉन एस, एस प्लस थ्री, एस प्लस फोर। सो ज़ीरोज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें न्यूमरेटर को इक्वेट करना है ज़ीरो के साथ में। इसके प्रीवियस वाले एग्जांपल में हमने डिनोमिनेटर को किया था। तो न्यूमरेटर क्या है, s इंटू एस प्लस टू इंटू एस प्लस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। एस प्लस टू की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और एस प्लस फोर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब s इज इक्वल टू ज़ीरो, एस प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो है तो s की वैल्यू निकाल सकते हैं, s इज़ नथिंग बट माइनस टू। एस प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो है तो s की वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस इज़ नथिंग बट माइनस फोर। और ये जो वैल्यूज़ आई है s की, ज़ीरो, माइनस टू, माइनस फोर, दीज आर नाउ द ज़ीरोज़ ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन। अब इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है एस प्लेन में, ये देखते हैं। अब आप देखिए, ये देखिए कि दिस इज़ द एस प्लेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़। एस प्लेन रिप्रेजेंट करना यानी दिस इज़ रियल एक्सिस, दिस इज़ इमेजिनरी एक्सिस। और ज़ीरोज़ हमारे क्या क्या आए थे, ज़ीरो, माइनस टू और माइनस फोर। बट यहाँ इंस्टेड ऑफ क्रॉस वी आर रिप्रेजेंटिंग द ज़ीरो लाइक स्ट्रक्चर। तो ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है, जो जो हमारी वैल्यूज़ आई थी इसकी उसके ऊपर पोल्स करना है, तो क्रॉस मार्क करना है हम लोगों को, ठीक है। अब आप एक बात देखिए कि जब जब आपके पोल्स इस इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल। ध्यान रखना है ये चीज़, जब जब आपके पोल्स जो कैलकुलेट करते हो आप यानी क्रॉस वाले, वो जब तक लेफ्ट हैंड साइड में है इमेजिनरी एक्सिस के, तब तक सिस्टम स्टेबल होती है। अगर बाय मिस्टेक ये पोल आपका राइट हैंड साइड में जनरेट होता है इस साइड में, तो सिस्टम अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में जो देखा है वही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल मैनर में दिया हुआ है। व्हाट इज़ द पोल ज़ीरो प्लॉट। पोल का मतलब ऐसी न्यूमरेटर में s की वैल्यू रखना है जिससे पूरा इक्वेशन इनफाइनाइट बने और डिनोमिनेटर ज़ीरो बने। ज़ीरो का मतलब न्यूमरेटर में s की वैल्यू ऐसी रखना जिसकी वजह से पूरा न्यूमरेटर ज़ीरो बने और ट्रांसफ़र फंक्शन आपका ज़ीरो हो जाए। सो प्लॉट करने के लिए जो हमने बताया है, एस प्लेन को ड्रॉ करने के लिए देयर आर टू एक्सिस, वन इज़ रियल एंड सेकेंड वन इज़ इमेजिनरी। एस का इक्वेशन हमेशा सिग्मा प्लस जे ओमेगा, एक्स एक्सिस पे हम हमेशा सिग्मा लेंगे और वाई एक्सिस पे जे ओमेगा लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ द कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोल्स एंड ज़ीरोज़। अब देखिए आपके जो पोल्स निकले थे वो थे, आपने कैलकुलेट किए थे, ज़ीरो, एस इज इक्वल टू ज़ीरो था, एस इक्वल्स टू माइनस थ्री था और एस इक्वल्स टू माइनस फोर था। तो हमने पोल्स को मार्क कर दिया है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस साइन। और हमारे ज़ीरोज़ जो कैलकुलेट हुए थे वो था एस इक्वल्स टू ज़ीरो, एस इक्वल्स टू माइनस टू, एस इक्वल्स टू माइनस फोर। तो हमने यहाँ पे फिर से ज़ीरो मार्क करके ज़ीरोज़ को भी मार्क कर दिया। सो दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल 1 and 2 पोल्स और ज़ीरो हम कैसे एट अ टाइम मार्क कर सकते हैं एस प्लेन में। अब ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ फ्रॉम द ट्रांसफ़र फंक्शन। तो आप लोगों को अभी पता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन में एक न्यूमरेटर होता है यानी सी एस, और डिनोमिनेटर होता है दैट इज़ आर एस। और आपने सी एस की भी वैल्यू देखी, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, और आर एस की भी वैल्यू देखी आपने, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी क्या,
जिस ट्रांसफ़र फंक्शन में हम डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देते हैं ज़ीरो के साथ में और बाद में पूरे डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, उस इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। द इक्वेशन obtained by equating the denominator polynomial of a transfer function to ज़ीरो, यानी डिनोमिनेटर इक्वल्स टू ज़ीरो लिख देना, तो वो जो इक्वेशन क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. दिस कैलकुलेशन इज फॉर 2 marks just to write the characteristic equation. अब आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं. उस एग्जाम्पल में दिया है फॉर द गिवन ट्रांसफर फंक्शन के एस प्लस 6 एस प्लस 2 एस प्लस 5 एस स्क्वायर प्लस 7 एस प्लस 12. इस पूरे इक्वेशन के लिए पोल्स फाइंड आउट करना है, जीरोस पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करना है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है. अब आपको पता है कि पोल्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है कि दिस डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. तो मैंने इस डिनोमिनेटर को इक्वल्स टू ज़ीरो रख दिया. अब ये तो आसान चीज़ है कि s इज इक्वल टू ज़ीरो, एस प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, एस प्लस 5 इज इक्वल टू भी ज़ीरो. लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या चाहिए हम लोगों को, तो इससे हमारी वैल्यूज़ निकल जाएगी s माइनस एस इज इक्वल टू माइनस 2, एस की वैल्यू प्लस 5 है तो एस इज इक्वल टू माइनस 5. लेकिन इस इक्वेशन को भी हमको ज़ीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा. हम अभी कर रहे हैं एस प्लस 2 एस प्लस 5 एस स्क्वायर प्लस एस 7 प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो. तो एस स्क्वायर प्लस एस 7s प्लस 12, इसके जो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने अगर फैक्टर्स कर दिए, मैथमेटिक्स में आपको पता है कि 7 इज़ नथिंग बट 3 प्लस 4 और 3 इंटू 4 करने से 12 भी बनता है. इसलिए इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, s प्लस 3 और s प्लस 4. अब ये s प्लस 3 और s प्लस 4 को भी हमको इक्वेट करना पड़ेगा ज़ीरो से, क्योंकि ये इसके फैक्टर है और ये फैक्टर यानी ही इक्वल्स टू ज़ीरो है. तो हम s प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो यानी s इक्वल्स टू माइनस 3, s प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो यानी s इक्वल्स टू माइनस 4. द पोल्स आर लाइक, पहला पोल निकला हमारा s इक्वल टू ज़ीरो, फिर माइनस 2 माइनस 3 और इस इक्वेशन से अभी माइनस 3 एंड माइनस 4 और पहले वाले इक्वेशन से 0 माइनस 2 और माइनस 5. तो ये हो गए हमारे पोल्स. अभी अगर हमको ज़ीरोस कैलकुलेट करना है तो ज़ीरो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ज़ीरो लिखना है. अब ज़ीरो कैन बी ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग न्यूमरेटर विद ज़ीरो. न्यूमरेटर क्या दिया हुआ था, s प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरोज़ आर s इज इक्वल टू माइनस 6. तो अब आप देखिए कि ये जो पोल ज़ीरो प्लॉट है ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि कैसे ड्रॉ करना है. हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यानी कैसे डिज़ाइन करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नथिंग बट न्यूमरेटर का जो वैल्यू था उसको किसके साथ में इक्वेट करना है, हम लोगों को ज़ीरो के साथ में इक्वेट करना है. तो न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर क्या था हमारा, एस प्लस 2 एस प्लस 5 एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो. अब इस पूरे इक्वेशन को अगर हमने ज़ीरो के साथ इक्वेट कर दिया है तो ये बन जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. फिर इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए. s प्लस 2 और s प्लस 5 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको ये टर्म मिलती है एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10. फिर ये ब्रैकेट्स, ये दोनों ब्रैकेट्स को s के साथ में मल्टीप्लाई करना है. तो s इंटू एस स्क्वायर यानी एस क्यूब, s इंटू 7s यानी 7s स्क्वायर और प्लस 10 इंटू एस यानी 10s. तो ये एक ब्रैकेट बन जाएगा और बाद में ये वाला एक ब्रैकेट बन गया. अब ये दोनों ब्रैकेट्स को अगर सॉल्व करना है तो पहले s क्यूब से पूरे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 7s स्क्वायर से पूरे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 10s से पूरे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा वाला इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ s. अब s को आप ऑब्जर्व कीजिए तो हाईएस्ट डिग्री क्या है इसका, 5, यानी हाईएस्ट पावर क्या है इसका, 5. सो ये इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने के बाद ये एस क्यूब वाली टर्म है, ये एस क्यूब वाली टर्म है, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी 12 प्लस 10 22 हो जाएंगे. उसके बाद में और ये 49 है, 22 प्लस 49 71 हो जाएगा, यानी 71 एस क्यूब. उसके बाद 7s टू द पावर 4 है, यहाँ पे भी 7s टू द पावर 4 है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो 14s टू द पावर 4 हो जाएगा. उसके बाद में 84s टू द पावर 2 है, यहाँ पे 70s टू द पावर 2 है और यहाँ पे ये हो जाएगा 154s टू द पावर 2, प्लस ये s वाली टर्म एक ही है तो यहाँ पे s वाली टर्म एक ही आ गई, यानी ये कंप्लीट इक्वेशन बन गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इसके बाद में ये एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है
जहाँ पे नॉर्मली जो पोल्स और ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना है वो तो उसी टाइप से करना है हम लोगों को। बस यहाँ पे एक जो डिफरेंस मुझे दिखाना है वो ये है कि ये वाला जो ब्रैकेट है इसके फैक्टर्स नहीं होते हैं। एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इसके फैक्टर्स नहीं हैं। जैसे आप लोगों को एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 12 इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, s प्लस 3 और s प्लस 4, लेकिन वैसे इसके फैक्टर्स कभी नहीं आते हैं, इसलिए इस प्रॉब्लम में कैसे देखेंगे। इसके फैक्टर जिस ब्रैकेट के फैक्टर्स नहीं आते उनके रूट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। तो b का मतलब होता है ये जो मिडल टर्म है s वाली सिंपल, उसका जो मल्टीप्लायर है यानी 2, तो 2 यानी b हो जाएगा यहाँ पे, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। c का मतलब होता है जो कांस्टेंट टर्म है विदाउट एनी s पैरामीटर, तो वो हो जाएगा आपका c, ठीक है। और a का मतलब है s स्क्वायर के साथ में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। एस स्क्वायर के साथ में अगर 2 मल्टीप्लाई होता था तो ए की वैल्यू 2 होती थी, एस स्क्वायर के साथ में यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब एस की वैल्यू होगी 1। तो ये सॉल्व करने के बाद जो रूट्स मिलते हैं आप लोगों को दैट इज़ -1 प्लस जे और -1 माइनस जे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइंस है, इसलिए एक प्लस और एक माइनस। तो ये हो जाएंगे आप लोगों के पोल्स। फिर ज़ीरो तो नॉर्मल वे में कैलकुलेट करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ज़ीरो, वो हो जाएगा आपको। इसके बाद में आपको पोल ज़ीरो प्लॉट ड्रॉ करना है। तो ये है आपका इमेजिनरी एक्सिस, ये है आपका रियल एक्सिस। इस पे पोल्स जहाँ जहाँ आए वहाँ पे क्रॉस साइन मार दीजिए आप, और जहाँ जहाँ आपके ज़ीरोज़ है, अब आपके पोल आए थे -1 प्लस जे, तो ये -1 और प्लस जे यानी कहाँ पे होता है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पे ये हो गया आपका पोल। फिर -1 माइनस जे पे भी था एक पोल, तो ये -1 और ये माइनस जे यहाँ पे क्रॉस यानी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट जो रहेगा वो भी आपका पोल बनेगा। सो दिस इज़ अगेन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फिर से डिनोमिनेटर को आप इक्वल्स टू 0 कर दो और इस चीज़ को आप सॉल्व करते जाओ, तो फाइनली जो आपको मिलेगा दैट विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ वी विल गो फॉर द समरी। सो आफ्टर completion of this topic we come to know about how to find out the poles and zeros, how to plot S-plane representation of poles and zeros, and how to find out characteristic equation of a given transfer function. So students, thank you so much for patiently listening this topic, and in the next topic we will continue with the 2.4, that is first and second order control system. Thank you.